પ્રોજેક્ટ અને પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવમાં વડાપ્રધાન મોદી હાજરી આપવા માટે પહોંચ્યા છે અને અત્યારે જે આ મહોત્સવનું આયોજન એક મહિના માટે કરવામાં આવ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ અત્યારે વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. અક્ષરદેરી અને હંસ વગેરેના પાણીમાં પડતા પ્રતિબિંબોથી ઝળહળી રહેલો આ ઉદ્યાનનો મધ્ય ભાગ, બિંબ પ્રતિબિંબની આ પ્રસ્તુતિ આપણને આશ્ચર્ય અને અહોભાવમાં ગરકાવ કરે તેવી છે. અક્ષરધામની બંને બાજુ ઝગમગતું પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન એક સમાન છે. 2 જ્યોતિ ઉદ્યાન અહીંયા બનાવવામાં આવ્યા છે. હજારો સ્વયંસેવકોએ એમનું યોગદાન આપ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો E=mc². પ્રધાનમંત્રી મહોદય જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એની પાછળ E=mc² સાપેક્ષવાદ અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંતોનો ઉપહાર જે સર્વકાલીન મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને આપ્યો એમનું સૂત્ર ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ये इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ श्रद्धा का एक संदेश दिया गया है. चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान में श्रद्धा रखते थे. हाँ, उन्होंने ये बड़ा अद्भुत सूत्र दिया जिसके आधार पर कई सारे इस तरह से वैज्ञानिक संशोधन हुए, E=mc². लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक श्रद्धा वो बहुत ताकतवर थी. तो यहाँ चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक रूप से कोई अग्रसर हो, हर एक के पीछे कई श्रद्धा छिपी हुई है. तो इसका यहाँ ज्योति उद्यान में बहुत सुंदरता से निदर्शन दिया गया है. ભારતની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે એક અલૌકિક પ્રદર્શન અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં, ભારતના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જે મહાન વિભૂતિઓએ પ્રદાન આપ્યું તેઓનો પરિચય બાળકો કેળવી શકે તે માટે અહીંયા સુંદર મજાના એમના ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે. जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र पर्व पर यहाँ हमारे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में, भारत के निर्माण में जिन अवतारी पुरुषों ने, जिन महान संतों ने, जिन महाराजाओं ने, जिन ऐसे स्वतंत्र वीरों ने जो अपना योगदान दिया है उसको यहाँ बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है. तो आज़ादी के अमृत पर्व पर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है. हर एक व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, देहाती है या शहरी है, या कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह का वो पद पर वो विराजमान है, वो अपना कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए अवश्य दे सकता है. और ऐसे ही ये देश महान बनेगा, ऐसे ही ये संस्कृति महान बनेगी. इसका यहाँ सुंदरता से संदेश सजाया गया है. As the nation and the world gathers to celebrate 75 years of independence of India, it is important to note that beyond just India and the contributions that these people have provided to this great republic and this region, this subcontinent, there's a large Indian diaspora in Australia, in Africa, in Europe, in North America, South America, and these Indians are as proud, these Indian Americans, these Indian Europeans are as proud of their heritage and tradition. Prime Minister Shri Narendra Modi, Brahma Vihari Das Swami and other invited guests are making their way towards this place of tribute to the great Indian Republic. आने वाले समय में आइए हम भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों, सम्राटों एवं राजनेताओं को हमारी भावांजलि समर्पित करें. हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर्व वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
भारत आज जो एक भारत के रूप में विराजमान है, दुनिया में, विश्व में अपना एक नाम बना रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो आज वास्तव में वे आज़ादी के इस अमृत पर्व की प्रस्तुति में वे वहाँ बैठे हैं। पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आदि सब यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं। Swamiji, you just mentioned the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. And I was thinking just a few days ago, I was reading a chapter from his book, Transcendence. And in that book, he mentions how Pramukh Swami Maharaj was not just an inspiration on the spiritual path for him, but also on his path as a scientist, also on his path as a creator, also on his path in terms of ecumenical overall development. And that is the kind of influence, that is the kind of lasting impression Pramukh Swami Maharaj has left on the lives of millions across the world. Just a few days ago, I met a young student here who was studying in Delhi, and he told me how Pramukh Swami Maharaj had blessed him to finish his PhD and then later go on to get his MD. And he had moved on to other parts of the world to finish both degrees. And you could clearly see on his face, Swamiji, that yes, he was driven, yes, he was ambitious, yes, he wanted to give back and serve society, but there was this hand, this divine, humanly divine hand on his back in the form of his Guru, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and now His Holiness Mahant Swami Maharaj, that was continuing to inspire him and motivate him. आप देख रहे हैं अक्षरधाम की प्रतिकृति। अक्षरधाम की प्रतिकृति यहाँ पर जो निर्माण की गई है, दिल्ली का अक्षरधाम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का धाम। यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज नगर में अक्षरधाम की प्रतिकृति रिकॉर्ड ब्रेकिंग समय में निर्माण की गई। दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो गुलाबी, सफेद, संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया हुआ, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि में फैला है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं। मंदिर में उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंबे हैं, 9 अलंकृत गुंबद हैं और 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। अक्षरधाम मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी, पूज्य आदर्श जीवन स्वामी हमारे साथ उपस्थित थे, तो मैं पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर कैसे तैयार की गई। जी हाँ, मैं इस प्रतिकृति के बारे में कुछ बातें कहूँ। उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताऊं कि ये एक ऐसा महामंदिर है जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम प्रस्तुति के रूप में राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के वक्षस्थल पर विराजमान है। ये अक्षरधाम जो है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करते हुए इस अक्षरधाम का निर्माण सन 2005 में किया था। ये जैसे अभी आपने ध्वनित भाई बताया कि ये जो अक्षरधाम है वो गुलाबी सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ है, तो सच में ये इतना विशाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको स्थान दिया गया है, द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उसको स्थान दिया गया है। और ये जो अक्षरधाम महामंदिर है जो दिल्ली में रचा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि वो केवल 5 साल में पूर्ण हुआ था, एग्जैक्टली 5 साल में जी। तो इसको जो देखने वाले वो आज इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल 5 साल में ये संभव नहीं हो पा सकता। इतने सारे पत्थर को संवारना, उस पर तक्षण कार्य करना, शिल्प कार्य करना, ये कैसे संभव है।
वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। भारत की इस पुण्य भूमि पर यश श्यामला देव भूमि पर अक्षरधाम सनातनम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, अक्षरधाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत गण के साथ अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में अक्षरधाम की प्रतिकृति की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर इस प्रतिकृति में ऋषियों की, संतों की मूर्तियां हैं, उनका दर्शन करते हुए इस प्रतिकृति में 48 ऐसी मूर्तियां हैं जो गणेश जी की हैं। और अब प्रधानमंत्री महोदय सीताराम और हनुमान जी का दर्शन करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ते हुए वंदे भारत मातरम, हजारों लोगों का अभिवादन भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। सस्मित चेहरे के साथ प्रधानमंत्री महोदय दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण की मूर्ति का। अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ प्रधानमंत्री श्री यहां उपस्थित जनता से अभिमुख हो रहे हैं।